Hello student. Today we will solve the questions of Coulomb's law. All the questions are taken from NCERT and CBSE previous year. The first question is, first you know that Coulomb's law state that whenever 2-point charge is placed in vacuum, okay, 2-point charge, okay, placed in vacuum, then the force between them is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Here K is proportionality constant or electric constant, and the value of K in SI system, if two charges are placed in vacuum or free space, then value of K is 9 into 10 to the power 9. Okay, now the first question is from NCERT. There are 2-point charges. First charge is A and second is B. It is having magnitude 10 coulomb charge and it is having magnitude 11 coulomb charge. They are separated by 60 centimeter apart. Now the third uncharged is brought to contact with first charge. And what will happen? By conduction, you know, charges, it is having no charge, it means its total charge is 0. By conduction, you know, charge will distributed 10 plus 0 divided by 2 means each will get 5 coulomb charge. Okay, each will get 5 coulomb charge. And now we brought 5 coulomb charge in contact with 11 coulomb charge. इसको ऐसा करने के बाद 5 coulomb के बाद हम क्या करेंगे, 5 coulomb चार्ज जो C है उसे हम कांटेक्ट में लाएंगे B वाले चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से. And what will happen? 11 plus 15, again there is a distribution of charge. Okay, uniform distribution of charge. So 11 plus 15 divided by 2, it will give 16 by 2, that is 8 coulomb each. अब क्या किया गया, इस C को यहाँ से हटा दिया गया. ठीक है, तो आप जानते हो दो चार्ज है, एक के ऊपर 5 कूलम है. अभी इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है. 16 डिवाइड बाई 2 डेट इज 8 कूलम. इसे यहाँ से हटा दिया गया, मतलब ये अब नहीं है. ठीक है, ये अगर नहीं रहेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ चुका है बताओ. बी के ऊपर चार्ज आ गया है 8 कूलम. नाउ यू कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन देम. हाउ टू फाइंड द फोर्स बिटवीन देम? द फॉर्मूला इज सिंपल. फॉर्मूला इज K Q1 Q2 upon R square. R is in centimeter. We can convert into meter by multiplying 10 to the power minus 2. 1 centimeter is equal to 10 to the power minus 2 meter. Okay, that's why I have written here square. Now you can find now the question for you is, आपको इसको सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट में बताना है. और आपको ये भी क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर यही चार्ज को सब कुछ ऐसा करने के बाद ऐसा किया हमने और डिस्टेंस हमने 60 की जगह कितना कर दिया, 35 कर दिया, तब फोर्स में क्या वैल्यू आएगा ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है. ठीक है, 35 सेंटीमीटर. दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, देयर आर 3 चार्जेस. देखो, एक 4 कूलम चार्ज है, एक प्लस Q कूलम चार्ज है और एक ये. ऑल आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, क्वेश्चन क्या है कि Q एक्चुअली में ये चार्ज था और इस चार्ज से 4 कूलम चार्ज से प्लस Q स्मॉल Q कूलम चार्ज को x/2 पे रखा गया एंड प्लस Q कूलम चार्ज को x डिस्टेंस पे रखा गया फ्रॉम 4 कूलम चार्ज. तो हम जानते हैं बाइसिमेट्री, अगर ये x, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर x है और यहाँ से यहाँ तक x/2 है तो ये कितना हो जाएगा, x/2. Now the question is, you have to find the magnitude of Q and the nature of the charge if the net force experienced by small q is 0. Very simple question. Net force experienced by this charge. अब देखो ये किसके कारण force experience करेगा. This will experience a force due to these two charges which are placed at a distance of x/2 from Q. अब आप जानते ही हो, सिंपल है. क्या फॉर्मूला होता है बताओ, ये कैसे निकलेगा. ये चार्ज पॉजिटिव है. इट इज ऑल्सो, सपोज आई हैव टेकन दिस इज पॉजिटिव, बाय अजम्पशन आई हैव टेकन. सो व्हाट इट विल डू, इट विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन दिस चार्ज. तो ये इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इस साइड. तो ये जो फोर्स इस पे लगाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू इज Q अपॉन x/2 स्क्वायर. This will also exert a force on this charge
and what is the magnitude of this force? It will also exert a force on this charge, and what is the magnitude of this force? The magnitude is K, okay, K, Q and 4Q. Modulus we have to take, and the distance between them is x/2 square. नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जीरो, इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने इक्वेट कर दिया, तभी तो ये ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। ऐसा कब होगा? जब दोनों फोर्स क्या होंगे, दोनों जो फोर्स लग रही है दोनों क्या होंगी? बराबर होंगे। जब सॉल्व करेंगे तो F + 4Q आया है, देयरफॉर Q मस्ट बी पॉजिटिव। Q पॉजिटिव क्यों होगा? अगर Q नेगेटिव होगा तो नेट ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये मान लो नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? ये इसे अपनी तरफ बुलाएगा, ठीक है। यानी इस पे फोर्स किस साइड लगेगा? अगर ये नेगेटिव रहा तो इस पे फोर्स इस साइड लगेगा, ठीक है। और ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा? सॉरी, अगर ये नेगेटिव रहा तो इस पे ये इस साइड अपनी तरफ बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर Q चार्ज नेगेटिव रहा तो इसे अपनी तरफ बुलाएगा। और ये क्या करेगा? अगर ये भी पॉजिटिव है, ये तो पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कि ये पहले से पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसे अपने से दूर। तो दोनों इस साइड फोर्स लगा रहा है, मान लो ये F1 ये F2। अब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए Q क्या होनी चाहिए? Q मस्ट बी पॉजिटिव। नोट डाउन दिस। Now the next question is that there are three charges, 4 coulomb charge, 2 coulomb charge and 3 coulomb charge. They are placed at the vertices of equilateral triangle having length, one side is having 1 meter, this is also 1 meter, 1 meter. Now the question is find the force experienced by this 4 coulomb charge. 4 coulomb charge कितना force experience करेगा? This 4 coulomb charge will experience a force due to these two charges. All are positive. All are positive. So it will exert a force on this charge. It will also exert a force on this charge, because we know from the Coulomb's law that कि दो चार्ज के बीच में हमेशा क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात याद रखना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस 4 कूलम चार्ज, हमें ये दोनों के फोर्स को नेग्लेक्ट कर देना है कि इसके बीच में क्या फोर्स लगेगा। वी हैव टू सी ओनली द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस 4 कूलम चार्ज, एंड दिस 4 कूलम चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू ओनली दिस 2 कूलम चार्ज एंड 3 कूलम चार्ज। और ये फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन होता है। जैसे ये लाइन, ये फोर्स, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? इट विल रिपेल दिस चार्ज। तो ये इसे इस साइड रिपेल करेगा, मतलब स्ट्रेट करेगा, ऐसे ऐसे नहीं करेगा, स्ट्रेट ले जा करके ऐसे करेगा। एंड दिस विल ऑल्सो रिपेल दिस चार्ज स्ट्रेट, सीधा पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन होता है ऐसे। तो मैंने क्या किया है, अगर आपको इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा, देखो ये जो था ना, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, दिस इज 4 कूलम चार्ज, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ 4 कूलम चार्ज, ओके। अब ये 4 कूलम चार्ज क्या कर रहा है? इसके कारण इस साइड फोर्स कर रहा है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज गिवन बाय K24 बिकॉज K24 अपॉन 1 स्क्वायर, distance between them is 1. Similarly, this will also exert a force on this 4 coulomb charge, and the magnitude of that force is from Coulomb's law K upon r square, and the distance between them is what? 1 meter. Okay, 1 meter. Now these are the two forces acting, and this force is vector. So we can how to find the resultant? By parallelogram law. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ओके। अगर मैंने इसका नाम दिया ए वेक्टर और इसका नाम दिया बी वेक्टर, देन बाय पैरेललोग्राम लॉ वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? इनके बीच का एंगल चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, वही मैंने किया 60 60 60, तो ये भी क्या होगा? 60 ही होगा, ओके। द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय रूट अंडर ए स्क्वायर plus b square plus 2ab cos theta. Here theta is 60 degree. What is a? You have to solve this. What is b? You have to solve this, and you can directly find the value of resultant. You have to answer in comment. Okay, you solve this and you have to answer me in comment box.
and one more homework for you. Suppose these charges, now I am going to change the charges. This is plus, now I make different question. Okay, this is minus 3 coulomb charge and this is plus 4 coulomb charge. Then what is the resultant force experienced by this 4 coulomb charge? This is plus, this is minus. पहले वाले क्वेश्चन ही बनाना है, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इज देयर आर टू आइडेंटिकल चार्ज। आइडेंटिकल चार्ज का मतलब या तो माइनस 10 कूलम चार्ज माइनस 10 कूलम चार्ज, या तो प्लस 10 कूलम चार्ज प्लस 10 कूलम चार्ज। बोथ आर separated by a distance r. Now the question is a third charge q is placed between them so that it will experience a net force 0. मैंने क्या किया कि इस 2 कूलम के जो सिस्टम है ये दोनों जॉइंट है ऐसे करके, है ना, इसके बीच में क्यू चार्ज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और आपको ये बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस पे वो क्यू चार्ज को रखेगा कि वो नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करेगा। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस क्यू चार्ज इज 0। कितनी डिस्टेंस पे रखेगा, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, x डिस्टेंस पे इससे रखा तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। नाउ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस इज व्हाट, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस इज, आप इसमें देख सकते हो इसका आपको क्या करना पड़ता है, पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये किस साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके कारण इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आप यहाँ लिख दो इस साइड। और इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू Q1 Q2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं इसको अच्छे से कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। क्या करना पड़ता है आपको निकालना है द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस Q charge which is placed in between them. We don't know what is the distance between where we place this charge so that the net force experienced by this Q charge is 0. मुझे पता नहीं है कि मैं इस Q को कहाँ रखूँ कि वो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 0। तो मैंने कहाँ रखा, x पे रखा, Q से 10 कूलम से। द रिमेनिंग डिस्टेंस इज r माइनस एक्स। नाउ व्हाट टू डू, यू हैव टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज Q, इस Q ये भी पॉजिटिव है, ये प्लस है, प्लस प्लस रिपल्सन, सो दिस विल exert a force in right direction. So what is the magnitude of this charge, K, this is 10 and this is Q, Q upon K is electric constant, okay, 9 into 10 to the power 9, okay, and the distance between them is x square, x. So we know r square is their formula, so we have to put r is x square. Similarly, it will exert a force in this charge in this direction. So what we have to write, K 10 coulomb, okay, into Q, Q upon distance is r minus x whole square. Now if it will experience a net force 0, it means these two forces are equal. It means K 10 Q upon r minus x whole square is equal to K 10 Q upon x square. This will cancel and you can find the value of x. You have to comment this answer. You have to find the value of x and you have to answer in comment. Okay. One more question I want to give. Suppose this is square and minus 4 coulomb charge plus 3 coulomb charge minus 6 coulomb charge and this is 2 coulomb charge. Question is find, this is square, all sides are 90 degree. Questions are find the force experienced by this 2 coulomb charge. This is also homework. And the length side of one is 1 meter. This also you have to answer me in comment. ठीक है, एक स्क्वायर है जिसके चारों साइड में चार्जेस रखे हैं, माइनस 4 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, दिस इज बैकग्राउंड म्यूजिक, ओके, माइनस 4 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, माइनस 6 कूलम चार्ज एंड 2 कूलम चार्ज। ये 2 कूलम चार्ज सारे चार्जेस के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये आपको बताना है।
ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सारे चार्जेस के कारण, ये भी आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। ओके।